Good morning, my dear children of class 8. Today I will discuss question and answers of the chapter called Nation of India from Trade to Territory. This is second chapter of history. Now here, first set of questions that appear on page number 16. You take out your books, pencils and also notebook if required and start marking. First set of questions, these questions consist of MCQs. Pick the correct option. Number 1 and 2 that appear, these two questions appear on page number 16. First question is, the East India Company was granted a monopoly in trade with the East. East means here India and neighboring countries by Queen Elizabeth I. She is the Queen Elizabeth of England. On, you have to mention the date. 31st December 1600, 31st June 1500 or 22 February 1857. You know it is A answer. Option A is correct, 31st December 1600. So this is your first option. So you will get all answers and on the previous pages. So this answer is your 1600. The year in which Queen granted, Elizabeth granted this rights to trade, monopoly or right to trade. So you will get in the previous page. Now, second question, the Royal Charter was issued by, Royal Charter is an order, kingly order, the order from the king, that is known as Royal Charter, was issued by Vasco da Gama. He was not a king. Queen Elizabeth was, yes, she was Queen Elizabeth I. So option B is correct and none of these. So here Queen Elizabeth I was from Britain. So the question number second, the option B is correct. So now proceed to come to page number 18. Page number 18. Here again a two questions of multi-MCQ. First one is, the Battle of Plassey was fought between the British and you know well, Mir Qasim is not the correct answer. Murshid Quli Khan is not the correct answer. Though they are the Nawabs of Bengal, but these three are Nawabs of Bengal. But the war was fought between Siraj-ud-Dawla and the Britishers. That you well know in the previous pages written. So Siraj-ud-Dawla is the right answer. Option A is the right answer. 2. The Battle of Buxar was fought in the year. I told you Buxar is now in Bihar. That time it was also in Bihar. So Battle of Buxar was fought in the year 1864, no. 1757, no. It was Battle of Plassey, as you know. 1764, yes. Here option C is correct. So I have dealt with 4 MCQ. Now this is page number 19. Here MCQs. Tick the correct option. Hyder Ali died in, as you know, Hyder Ali was the king of Mysore. He was the father of famous ruler Tipu Sultan. Both were very strong. British could not lodge them out. Very difficult. British had difficulty in lodging them out. Then the answer is, Hyder Ali, he died in 1782. B answer is correct. You can find it in the previous page. You see, he died fighting valiantly against English forces, British forces.
ब्रिटिश फोर्स से लड़ाई करते, वो लड़ाई में काम आए, शहीद हुए कह सकते हैं अब हैदर अली अपने देश के लिए 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड एंग्लो मैसूर वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ, यहाँ पे मैंगलोर एक जगह है, ये कर्नाटक में आजकल, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिटी ऑफ मैंगलोर। मैसूर में तो कोई हुआ नहीं, श्रीरंगापट्टनम भी नहीं है आंसर। इसका सेकंड जो बैटल एंग्लो मैसूर बैटल हुए थे इनके बीच में, ब्रिटिशर्स एंड हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, इनके बीच में हुआ था। इसके बीच में जो सेकंड वार हुआ था वो मैंगलोर में, वहाँ ट्रीटी हुआ था, एक समझौते के बाद ये बैटल इट केम टू एन एंड। So I have discussed this. Now come to exercise. You will find your exercises on page number 24. Page number 24. There are A, B, C, D. Quick revision. Here A, multi MCQs. Here again MCQs appear. This fill in the blanks for first question. Blank defeated the British forces in the first Anglo-Mysore war. आपको पता है फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वार टीपू सुल्तान के फादर ने लड़ा था, हैदर अली। तो यहाँ आंसर आएगा हैदर अली। तो पेज नंबर 19 में मिलेगा, यू विल गेट द आंसर इन ऑन पेज नंबर 19. You go to page number 19, you will get the answer. Hyder Ali was he fought against the British, the first Anglo-Mysore war. In 1772, Dash became the Governor General of Bengal. ये आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 18 में आंसर मिलेगा, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट. पेज नंबर 18 जाइए और देखिए वारेन हेस्टिंग्स. वारेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर. ही इज द लॉर्ड, ही इज द गवर्नर जनरल फ्रॉम इंग्लैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ही केम आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव. तो वारेन हेस्टिंग्स इज द correct answer. In 1772, Warren Hastings became the Governor General of Bengal. Set B. Fill in the blanks. Vasco da Gama discovered the sea route to, जो तो आपको सब जानते हैं अच्छी तरह, छोटे बच्चे को पता है, वास्को डी गामा ने इंडिया का खोज निकाला था. यहाँ आंसर इंडिया आएगा. पेज नंबर 15 में इसका आंसर दिया हुआ है. यू विल गेट द आंसर ऑन पेज नंबर 15. Vasco da Gama, you well know, he is from Portugal, and the capital of Portugal is Lisbon. Next, question number 2. The English East India Company established their first trade settlement at, देखिए यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो ट्रेड सेटलमेंट जो कि वेयर हाउस था, इसको फैक्ट्री बोलते थे, ये हुगली बोल के एक जगह पे उसने स्थापित किया है, और एक जगह और स्थापित किया सूरत में, लेकिन थोड़ा सा पहले उन्होंने हुगली में किया था. लेकिन इन सम बुक्स इट इज़ ऑल्सो रिटन सूरत, कहीं बुक में सूरत मिलेगा आंसर. मेरे ख्याल दोनों आंसर ठीक मानना चाहिए. हुगली, आपको पता है हुगली लाइज इन वेस्ट बंगाल एंड सूरत इज इन गुजरात. तो दोनों आंसर आई विल मेक यू राइट, पर आपको बुक के अंदर ये आंसर पेज नंबर 16 में क्लियर कट हुगली दे रखा है. ओके, तो गो टू रेफर टू पेज नंबर 16, you will get the correct answer. That was at Hooghly first settlement. यहाँ पे उन्होंने इसको फैक्ट्री बोलते थे. आपको पता है फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, वो क्वेश्चन भी आएगा. फैक्टर्स बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी फैक्टर बोला जाता है. और ये कोई फैक्ट्री नहीं होती कि सामान बनाने वाला है. वहाँ पे वेयर हाउस होता है, गोडाउन टाइप होता है, बिल्कुल समुद्र किनारे होता है, सूरत या हुगली, ये तो नदी का किनारा. तो वहाँ लोग अच्छा सेटलमेंट बना लेते हैं. यहाँ पे ऑफिसर्स भी होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, रेजिडेंट क्वार्टर भी थे, ब्रिटिश अफसर जो यहाँ रहते हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग भी रहते हैं, और पूरा हिसाब किताब ट्रेडिंग का होता था. तो ये था फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने हुगली में लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी. थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स. अवध वाज एनेक्स्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये आपको पेज नंबर 20 में मिलेगा. सब्सिडियरी अलायंस, काला कानून था सब्सिडियरी अलायंस. मैंने आई हैव डिस्कस यू अर्लियर ऑल्सो. सब्सिडियरी अलायंस इसके लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था, और इसके तहत इसको अवध को उन लोगों ने एनेक्स कर लिया था, छीन लिया था. अवध के नवाब आपको पता है जो थे सिराजुद्दौला थे, और उनको कैप्चर कर लिया था. अवध मीन्स जो आजकल हम लखनऊ बोलते हैं, लखनऊ का जो एरिया है यूपी का,
दैट इज नोन वाज अवध। आजकल भी उसका अवध, क्षेत्र का नाम अवध ही बोलते हैं, लैंग्वेज का नाम अवधी है। वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको अवधी बोलते हैं। तो ये आसपास है, लखनऊ के आसपास के। उसके नवाब को सब्सिडियरी अलायंस के बारे में काफ़ी लंबा डिस्कस किया हुआ है, ये आपको पेज नंबर 20 मिलेगा। उसके प्रीटेक्स्ट बहाने, प्रीटेक्स्ट बहाने, उसके बहाने उसको छीन लिया गया था अवध का। ब्रिटिश की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी अवध को छीन लिया गया। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, सेट बी का। इन 1772 द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल कोर्ट्स प्रिजाइडेड ओवर बाय मुफ्ती एंड काजी। ये मैंने आपको कल बताया था, कल ही इसको डिस्कस। मुफ्ती और काजी जुडिशियरी सिस्टम में होते हैं। मुफ्ती छोटा होता है, काजी जस्टिस होता है। तो ये आपका क्रिमिनल केस कोर्ट्स को वहाँ पे किया जाता है, इसको डील किया जाता है। तो ब्रिटिश ने ये जुडिशियरी में मिलेगा आपको पेज नंबर 23 में। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स जिसको हम फौजदारी बोलते हैं, हिंदी में आप देख लेना, ब्रैकेट में फौजदारी लिखा है। और एक होता है दीवानी, वो ब्रिटिश अफसर्स करते थे। तो दो ढंग से केस डिस्कस होता है, एक मारपीट का केस, लड़ाई झगड़े का केस, वो हो जाता है क्रिमिनल में। और एक जमीन जायदाद का केस, वो होता है आपका दीवानी में केस में। तो आपको मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर 20 मान से मिल जाएगा। नाउ कम टू सेट सी, पेज नंबर 24। राइट T for true and F for false statements. First, in 1756 सिराजुद्दौला became the नवाब बंगाल। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आप याद रख सकते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो खुद दिमाग लगाई, एक साल पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे और बहुत ही कड़क राजा थे सिराजुद्दौला। ये बंगाल के नवाब थे। नवाब को राजा को बोला जाता था नवाब, जैसे नवाब पटौदी आपके इलाके में, इससे नवाब जो मोहम्मदन से लोग नवाब कहते राजा को। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। 1756 में इनका बंगाल के राजा बने, नवाब बने। ये ट्रू है। नंबर 2, रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। डबल गवर्नमेंट लगाया बंगाल के अंदर, बिल्कुल सही है। इसका भी राज चलेगा, कंपनी का भी राज चलेगा और नवाब का भी राज चलेगा। इसको डुअल कहते हैं, डबल गवर्नमेंट चलेगी। तो ये बहुत ही काला टाइप का था, एक एडमिनिस्ट्रेशन था, डुअल गवर्नमेंट। बाद में तो हटा लिया गया। ये ट्रू है, लॉर्ड क्लाइव ने ऐसा काम किया था। सब्सिडियरी अलायंस भी उन्होंने स्टार्ट किया था। थर्ड क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन द इंग्लिश एंड मराठास। ये गलत है, आपको ये फॉल्स है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ये मराठा के बीच में नहीं हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से इंग्लिश, और अच्छी तरह आपको मालूम है, डिस्कस भी किया था, इंग्लिश एंड मैसूर के जो हैदर अली टीपू सुल्तान, उसके बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और जो इंग्लिश और मराठा के बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ सलबार। ये आपको पेज नंबर 19 मिलेगा। पेज नंबर 19 ये मिलेगा, इंग्लिश और मराठा के बीच में सलबार की ट्रीटी हुई थी। तो ये आपका फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन, इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी कुड एट द मोस्ट बिकम ए सूबेदार। देखिए सबसे हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार होती थी, इससे ऊपर नहीं हो सकते थे। इनकी वही भेदभाव करते। तो इंडियन जो होते, इंडियंस जो ओरिजिन के होते थे भारतीय लोग, इनको सूबेदार के ऊपर का रैंक नहीं मिलता था फौज में। और ब्रिटिश जो होते थे, यूरोपियन जो होते थे, उनको आगे तक का रैंक मिल सकता। दे कैन गो अप टू जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ तक इनको आगे तक बहुत तरक्की कर सकते। लेकिन तरक्की खत्म थी, सूबेदार के बाद से ऊपर नहीं मिलता था। अब आइए सेट नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटसी। ये पैरामाउंट से आपको मिलेगा पेज नंबर 21 में मिलेगा आपको। ये आप मिलाइए लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ। तो 1 और बी का मिलान कीजिए, मैच करिए 1 एंड बी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने टाइम में, ये भी काला कानून था, आपने कल आपको डिस्कस भी किया था, प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटसी। नेक्स्ट, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स में लॉर्ड क्लाइव को दीवानी राइट्स मिल गया था। शाह आलम 2 आप पढ़ेंगे, शाह आलम 2 ने दीवानी राइट्स, मतलब ये राजस्व जो होता है, रेवेन्यूज को बड़ा खुली छूट दे दी थी लॉर्ड क्लाइव। बंगाल, बिहार, इन सब जगह में ये लोग, रॉबर्ट क्लाइव आएगा आर्थिक के अंदर, मतलब उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव शासक थे जब इनको दीवानी राइट्स दे दी थी शाह आलम 2 में। बहुत ही कमज़ोर आया था, मुगल आया था शाह आलम 2। आप पढ़ सकते हैं, आराम से देखिए, बड़ा मज़ा आएगा।
कैसे हमारे देश की हिस्ट्री पर भी। तो दीवानी राइट्स ये प्रदान कर दिया, गिफ्ट कर दिया गया लॉर्ड क्लाइव को। तो डी और 2 को मिलान कीजिए, यू कंबाइन डी एंड 2, यू मैच डी एंड 2। नेक्स्ट इज सब्सिडियरी अलायंस, मैंने बड़ा अच्छे तरह से आपसे डिस्कस किया है। तो सब्सिडियरी अलायंस आप मिलाइए, हाँ लॉर्ड वेल्जली, तो मैंने आपको गलत बोल दिया था, सब्सिडियरी अलायंस मैंने गलत बोल दिया, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि लॉर्ड वेल्जली के टाइम में आया था सब्सिडियरी अलायंस। तो आप उसको मिलाइए इससे, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था आपको इससे पहले, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये लॉर्ड वेल्जली के टाइम में सब्सिडियरी अलायंस आया था। तो सी और 3 ये डायरेक्ट मिलान कीजिए, सी के ही लाइन में 3 दिया हुआ है, तो यू मैच सी एंड 3। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये गोद लेने का कानून, ये तो आपको पता ही है लॉर्ड डलहौजी का बहुत बड़ा काला कानून था। ये एक्सपेंशन पॉलिसी के अंदर सब्सिडियरी अलायंस था, प्रिंसिपल पैरामाउंट सी, कैसे कैसे इन कानून को लागू करके अपना एम्पायर को बड़ा किया। इनके 3 बड़े कानून बड़े बड़े हैं, 3 के अंदर सबसे बड़ा सब्सिडियरी अलायंस था, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था जिसमें फंस चुकी थी झांसी की रानी, और थर्ड जो था प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट सी। ये ध्यान रखिए किस किस लॉर्ड ने चालू किया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लॉर्ड मैं दोबारा आपको करता हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये जो है ये आप मिलान करिए ए से, दैट मीन्स AN4 लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। गोद लेना कानून, जो कि आपको बता दिया, जो अगर किसी जेन्युइन संतान नहीं होती तो वो गोद नहीं ले सकता, वो ब्रिटिश टेरिटरी में मिल जाता है। कभी कभी कोई राजा जिसके अपना खुद का बच्चा नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो ब्रिटिश को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन में नीति, लैप्स की नीति के अनुसार वो ब्रिटिश को वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वो उस केस में हमारी झांसी की रानी फंस चुकी थी, जिस कारण झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का शिकार हो गई थी वो। और प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट सी ये किसने किया था, जो मैं गलत बोल दिया था आपको, ये आपके था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उसके बाद लॉर्ड वेल्जली ने भी ये सब्सिडियरी अलायंस, सबसे ज़्यादा खतरनाक कानून लॉर्ड वेल्जली लगाया था, लॉर्ड वेल्जली। तो ये हो गया आपसे C3। अब आइए इसी पेज में 24 में MCQs हैं। द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉट, कर्नाटक वार, मैंने बोला कर्नाटक कहा दक्षिण में है, जो आपके आसपास चेन्नई और मैसूर के आसपास कर्नाटक वार्स हुए थे। और वो पेज नंबर 15 में आंसर मिलेगा, 3 कर्नाटक वार्स हुए थे सुप्रीमेसी के लिए। कौन बड़ा है, ब्रिटिश बड़ा है या फ्रेंच बड़े हैं? तो बाद में आपको मालूम फ्रेंच हट गए थे, आपस में इन लोगों ने ट्रीटी हो गई थी, 2-3 इलाके छोड़ के बाकी ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले लिया था इंडिया का। तो 3 कर्नाटक आएगा बात, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 2, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड, ये एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा पेज नंबर 21 में, उसको प्रेसिडेंसीज बोलते, जैसे हम लोग स्टेट्स बोलते हैं उस टाइम उसको प्रेसिडेंसीज बोला जाता था। तो आपको बी आंसर करेक्ट है, तो यू विल गेट द आंसर इन पेज नंबर 21। नाउ कमिंग टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, short answer question. You see, you can read it, short answer question. I am reading before you. There are 4 short answer questions. What were factories? What were they? Why were they named so? ये फैक्ट्रीज आपको बोला, वो आजकल फैक्ट्रीज नहीं होती, सामान बनता है। फैक्ट्रीज वो होते हैं जो कि वेयर हाउसेज होते हैं। उस टाइम जो कंपनी के लोग आते थे 1600 के में जब आई थी कंपनी इंडिया में तो व्यापार करने, औरंगजेब के टाइम में, 1600 नहीं एग्जैक्टली, ये आपके आए थे जहांगीर के टाइम में, सर थॉमस रो आए थे, तब यहाँ पर इन लोगों ने फैक्ट्री बनाई थी हुगली में। फैक्ट्री का मतलब वहाँ पे सामान रहेगा, वहाँ से निर्मित होकर इंग्लैंड से जो सामान आएगा यहाँ पर ये लोग वहाँ रख देंगे। बहुत बड़ा गोडाउन होगा, वेयर हाउस होगा, वहाँ पे अफसर्स होंगे, कॉलोनीज होगी। ऐसा उन्हें फैक्ट्री लगाई, 2 जगह लगाई, हुगली वेस्ट बंगाल में एंड सूरत गुजरात में। तो वहाँ पर एक कोस्टल एरिया है बहुत बड़ी, इसको फैक्ट्री कहते थे। तो ये आपका आंसर मिलेगा पेज नंबर 16 में। और ये आंसर भी देख लीजिए, व्हाई देवर नेम्ड सो, ये नेम टू फैक्टर्स बोला जाता था। फैक्टर्स कहा जाता था उनके जो कर्मचारियों को फैक्टर्स बोलते थे, इसलिए फैक्टर से बन गया फैक्ट्री। तो अब बड़ा आराम से आप पेज नंबर 16 विल गेट द आंसर। शॉर्ट आंसर B2, What were the causes behind the Battle of Buxar?
पेज नंबर 17 में मेंशन है। देखिए बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, मीर कासिम को ने पपेट राजा बना दिया था आफ्टर सिराजुद्दौला। उसके जमाई को मीर कासिम को ब्रिटिश ने बना दिया था बंगाल का नवाब। तो एक ढंग से घुटन महसूस हो रही थी मीर कासिम को, पूरे अधिकार छीन लिए थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, लेकिन वो मजे कर रहे थे ब्रिटिश लोग। तो मीर कासिम ने, आपको पढ़ा ये बैटल ऑफ बक्सर, ये चिढ़ के वो हुआ, तो ये ब्रिटिश लोग भी नाराज़ हो गए इससे, मीर कासिम से, और एक बक्सर जो कि बिहार में वहाँ एक लड़ाई हुई। पेज नंबर 17 में इसका आंसर मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो पेज नंबर 17 में मैं भी जा रहा हूँ, अब देख सकते हैं बैटल 17, यू विल गेट हियर द आंसर 17। तो ये आपको यहाँ मिलेगा 17, नीचे देखिए दिख रहा है पेज नंबर बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ आप देख सकते 1764 में। ऑल दिस आर्ग्ड, मतलब इसको चिढ़ा दिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या इसके पीछे आंसर मिलेगा, मीर कासिम ऑल्सो प्लेस लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेज ऑफ द कंपनी। तो उसने रोक लगा दी, लिमिट लगा दी कि इससे आप ज़्यादा कंपनी के ट्रेड को थोड़ा लिमिट लगा दी, इससे वो परेशान हो गए, क्योंकि उनने भी बहुत बुरी चाल चली थी मीर कासिम के ऊपर। एक ढंग से पावर टसल होने लग गया मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में बंगाल में, और मीर कासिम से कंपनी चिढ़ गई। इसके अर्थ मीन्स चिढ़ना, कंपनी को ये इसके जो उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई दी थी कंपनी के ऊपर, उससे चिढ़ गई थी कंपनी और उसने एक वार कर दिया था, इसको कहता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। जस्ट प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी का हुआ और 7 साल बाद बक्सर को हुआ। मीर कासिम वाज डिफीटेड, तो आप पता ही मीर कासिम हार नहीं था, एंड मीर जाफर को दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। तो वही जो मीर जाफर, जो मैंने मीर कासिम, हाँ ये आपका मीर जाफर का, ये आपका जमाई था, ही वाज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर को किसने माना, ब्रिटिश ने पपेट बना दिया था आफ्टर द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला, आपने पढ़ा है पूरा अच्छे से प्लासी का युद्ध के बारे में। ही वाज द मिलिट्री हेड ऑफ योर आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, लेकिन एंड टाइम पे मीर जाफर ने दगा दिया और मिल गया था अंग्रेजों के साथ। फिर मीर जाफर भी नहीं चल पाया, घुटा, फिर मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम वास और मीर जाफर ये इंग्लिश द्वारा पपेट स्थापित किए गए सिराजुद्दौला के मौत के बाद, और बंगाल का पूरा अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, what was the cause or result, what was the cause that resulted in the Anglo-African conflict? एंग्लो और अफ्रीकन में कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद हुआ, वो क्या इसका कारण था, पेज नंबर 21 में मिलेगा। हम पेज नंबर 21 देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। तो विवाद क्या था, तो अफगानिस्तान में विवाद ये था, तो इन द 80, देखिए अफगानिस्तान इंडिया से अलग था शुरू से, इट वॉज नेवर इन इंडिया, जैसे बर्मा इंडिया के साथ था, अब बांग्लादेश है, पाकिस्तान सब इंडिया के अंदर ही था, जो जिसको बहुत बड़ा इंडिया तब था पार्टीशन से पहले। लेकिन अफगानिस्तान कभी नेपाल कभी इंडिया के अंडर में नहीं था, तो अलग ही कंट्री था। इन द 1830 द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर्स। कारण क्या था, अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर अंदरूनी मामले में ब्रिटिश ने हस्तक्षेप देना चालू कर दिया, इंटरफेयर करना चालू कर दिया। कारण बता रहे हैं, एज ए थॉट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड अटैक इंडिया वाया अफगानिस्तान। ऐसा लग रहा था उसको, रशिया देखिए बहुत नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान का, तो उसको लग रहा था रशिया कहीं अफगानिस्तान पे कब्जा करके और बिल्कुल इंडिया पे के ऊपर आक्रमण नहीं कर दे, और फिर रशियन फौज के साथ कहीं मुकाबला करना पड़े इनको, ब्रिटिश कंपनी को। तो उसने अफगानिस्तान के अंदर उसने दखल अंदाजी चालू कर दी थी। लेकिन वार तो उनसे जो हुआ कि एक एंग्लो अफ्रीकन वार्स तो हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुए और उसको पाँव खींचने पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम, बहुत तेज़ उसने, और ब्रिटिश नहीं कर पाए ज़्यादा अटैक उनके ऊपर और उनके पाँव खींचना पड़ा। लेकिन हाँ, एक बार उन्होंने ट्राई की थी, ताकि ये आंसर होगा कि दे वांटेड टू check these Russians from entering for annexing Afghanistan
देयरफॉर दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर। तो आपका आंसर ही मिलेगा इन द 1836 वाई अफगानिस्तान मिलेगी, आपको पेज नंबर 21 में मिलेगा आंसर। इस ढंग से आपका ये आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ 3 एंग्लो मराठा वार्स। मराठा के साथ ये आपने पता है काफ़ी बड़ा अच्छा है, पेज नंबर 19 मिलेगा, तो ये थोड़ा लंबा भी है, पेज नंबर 19 में इसका आंसर आपको मिलेगा। और ये आपको देख रहे हैं मराठा के यहाँ पे, अब पता है कई आफ्टर शिवाजी की डेथ के बाद मराठा बिकेम वीक, और वहाँ पर क्या हो, यहाँ पर कुछ अलग अलग परिवार हो गए, आपस में लड़ लगे, गायकवाड़, होलकर, भोसले, सिंधिया, तो आप मिल जाएगा यहाँ पर आंसर। और ये पेशवा के अंडर में थे, तो ये पावर स्ट्रगल बढ़ गया, आपस में खींचतानी बढ़ेगी। अब ये आंसर होगा टेकिंग, यहाँ से आंसर लिखेंगे टेकिंग एडवांटेज ओवर देयर डिसयूनिटी। आप डिसयूनिटी मतलब यूनिटी का उल्टा होता है, जो फूट है, ये जो आपस में जो मराठास के अंदर फूट पड़ेगी थी, इसका फ़ायदा लिया ब्रिटिश ने। जब ब्रिटिश इंटरफेयर इन देयर इंटरनल अफेयर्स, अंदरूनी मामले ये दखल अंदाजी करने लग गए ब्रिटिशर्स, दिस लेड टू द 3 एंग्लो मराठा वार। 3 लड़ाई हुई 1775 से 1899 तक, 1890 3 एंग्लो मराठा वार हुए। ये आपका कॉज यहाँ से आप मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपका अच्छी तरह से चैप्टर हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई लेसन एंड यू राइट ऑन योर पेयर नोटबुक। जब आपका स्कूल खुलेगा आप मुझे दिखाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ सकता है, आ गया होगा। ओके, तो पूरा चैप्टर मैंने आई हैव डिस्कस्ड यू with questions answer. Then okay, have a nice day. Goodbye my dear children.